Hello, good morning students and welcome all of you are in our storytelling session, and today's story is The Kind Thief. Once upon a time there lived three friends in a kingdom. एक समय की बात है, सुंदर स्थित राज्य में तीन मित्र रहते थे. One was the son of the king, Prabhu. The second was the son of a minister, Raghu. The third was the son of the merchant, Ramu. एक राजा का लड़का था प्रभु, दूसरा मंत्री का पुत्र था रघु, तीसरा एक व्यापारी का पुत्र था रामू. The three friends were good for nothing. They did not make use of their education. वो तीनों मित्र बेकार थे. उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं किया था. One fine day, the king, the minister, and the merchant all met and decided that their son needed to mend their ways. एक दिन राजा, मंत्री और व्यापारी ने निश्चय किया कि उन तीनों का व्यवहार बदलना चाहिए. They called the three boys and asked them to go out into the world and put the skill they had to use. उन्होंने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम दुनिया में जाओ और अपनी प्रतिभा दिखाओ. The three of you must learn to be self-sufficient, said the fathers. तीनों पिता ने उन्हें कहा कि तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए. The three friends left their homes and began traveling. तीनों मित्र घर से निकल गए और यात्रा करने लगे. I have heard that there is a mountain nearby that has several gemstones scattered on it, said Ramu. Let us go there and fetch a few gems. We can sell them and make money. रामू ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पास में एक पर्वत है जिसकी चोटी पर अनेक रत्न बिखरे पड़े हैं. उन्हें लेकर आते हैं और उन्हें बेचकर रुपए कमाते हैं. Prabhu and Raghu liked the idea very much. The three soon set off in search of the mountain. प्रभु और रघु को यह विचार अच्छा लगा. वे तीनों उस पहाड़ी की तलाश में निकल पड़े. After many days of traveling, the friends reached the mountain top. Over there, they saw several gems scattered all around. अनेक दिनों तक चलने पर वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे. वहां उन्होंने खूब सारे रत्न बिखरे पड़े देखे. They each picked only one gem, knowing that it would fetch them a very large sum of money. हर एक ने केवल एक रत्न ही उठाया क्योंकि यह रत्न से उन्हें अच्छी रकम मिल सकती है, वह वे जानते थे. Once they reached the bottom of the mountain, Raghu said, "Let us swallow the gems. That way we can travel through the forest without worry." जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो तुरंत रघु ने कहा, इन पत्थरों को निगल लेते हैं, इससे हम जंगल में चिंता के बिना यात्रा कर सकते हैं. The others agreed. They all swallowed their gems. दूसरे भी सहमत हुए और उन्होंने अपने रत्न निगल लिए. A thief had been hiding in the bushes and heard what they said. He decided that he would travel with them and gain their trust. एक चोर झाड़ी के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था. उसने उनके साथ यात्रा करके उनका विश्वास जीतने का निश्चय किया. When they were sleeping, he would kill them and take the gems. उसने सोचा जब वे सो रहे होंगे तब मैं उनको मार के उनके रत्न निकाल लूंगा. May I travel with you, kind sir? He asked them. The forest is full of thieves and I am afraid to travel alone. उसने तीनों मित्र को पूछा, जंगल में चोर ही चोर है, अकेले चलने में मुझे डर लगता है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? The friends agreed at once. मित्र तुरंत ही तैयार हो गए. The next day, as they were traveling, a gang of bandits captured them.
They searched all four and did not find any money of wealth on them. अगले ही दिन जब वे यात्रा कर रहे थे तो डकैतों का एक ग्रुप ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उन चारों की तलाशी ली और उनके पास से कोई धन या रुपए नहीं मिले। बट द थीफ डकैत हैड अ parrot that could tell him exactly where money was hidden. The gems are in their stomach, said the parrot. पर उनके सरदार के पास एक तोता था जो बता सकता था कि रुपए कहाँ छिपे हैं। तोते ने कहा कि जेम्स उनके पेट के अंदर है। The chief was about to kill Prabhu and take the gem out of him when the thief stepped forward. सरदार प्रभु को मारकर उसके पेट से रत्न निकालने वाला ही था, तब चोर सामने आया। He knew that once the ducat found that he had no gems in his stomach, the others would be set free. उसे मालूम था कि एक बार सरदार को उसके पेट में कोई कीमती पत्थर नहीं मिलेगा तो वह दूसरों को छोड़ देगा। So please किल मी फर्स्ट ही बैड। चोर ने प्रार्थना की, कृपया करके पहले मुझे मारिए। द डकैत किल हिम एंड फाउंड नथिंग ऑफ एनी वैल्यू विद इन हिम। सरदार ने उसको मार डाला, बट मगर कोई रत्न उसे नहीं मिला। माई पैरट वॉज रॉन्ग, आई हैव किल्ड दिस मैन फॉर नो रीजन। सो सेइंग ही फ्रीड द रेस्ट। मेरा तोता गलत था, उस आदमी को मैंने बिना कारण मार दिया। यह कहते हुए उसने दूसरे सब मित्रों को छोड़ दिया। प्रभु, रघु एंड रामू ऑल ट्रैवल्ड होम विद देयर जेम्स। प्रभु, रघु और रामू यात्रा करके अपने घर पहुंचे। दे सोल्ड देम एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट दे नेवर फॉरगॉट द मैन हु हैड सेव्ड देयर लाइव्स। उन्होंने रत्न बेचकर खूब पैसे कमाए, परंतु वे अपने प्राणदाता को कभी बुला न सके। सो स्टोरी इज फिनिश्ड हियर। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? तो हमें ये स्टोरी से सीखने को मिला कि आदमी कितना भी बुरा हो पर उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है। तो जब भी हमें कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। थैंक यू।